So, before going into the public key cryptographic algorithm, first I want to tell you something about basics related to those crypto systems. So, we want to define some functions that are used to develop such algorithms. So, first is one-way function. You may have heard about this function when we discussed hash functions. So suppose that y equal to fx is some function. Now this function is called one-way function if it is easy to compute y equal to fx if x is given. But if we want to calculate the inverse of this function, then it is difficult. For example, suppose it is you want to compute x given y and f. So you need to compute inverse of f. So computation of this function f inverse is difficult. That means if you are given x, you can compute y, but if you are given y, it is infeasible or difficult to compute x. ठीक है? So given y, it is difficult to compute x, sorry, small x. What does it mean? इसका मतलब यह है कि अगर आपको मतलब फंक्शन एक्स वैल्यू दी हुई है तो आप एक्स से और एफ एक्स आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो व्हाट इज फंक्शन एफ एक्स. बट इफ़ यू आर गिवन वाई एंड आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू what is the corresponding value for this x y corresponding value for y, that means x value, we are looking for x value. So if you are given y, you need to find out x. So for that you need to compute inverse of this function f. So it is difficult to compute y given x. So that means you can say that f inverse is difficult to compute. So now यार difficult का मतलब क्या है? Difficult means it is infeasible in terms of algorithmic sense. ठीक है? Algorithmic sense में difficult term एक क्वालिटेटिव काइंड ऑफ टर्म है, तो हम इसे एक स्केल पर नहीं डिफाइन कर सकते. सो जनरली हम डिफिकल्ट का मतलब यहाँ पर है कि एफ इनवर्स कंप्यूट करने के लिए जो भी एल्गोरिथम होगी दैट विल बी inefficient algorithm, or you can say that it may be algorithm that is of exponential in nature. So that's why it is difficult to compute f inverse. So this is called one way function. 1 minute. Okay, so this is one way function. Now there is a variant of this kind of one way function that is called trapdoor one way function. So there is another function that we need to define, trapdoor one way function. Okay, so actually here what is the problem कि आपके पास अगर x है, you know x and you know f, दैट फंक्शन को आप जानते हैं, तो आप एफ एक्स आसानी से कंप्यूट करके वाई कंप्यूट कर सकते हैं. ओके, बट सपोज दैट यू आर गिवन फंक्शन एफ, यू आर गिवन वाई, देन यू नीड, और आपसे कहा जाए कि एक्स कंप्यूट करिए, तो ये डिफिकल्ट टास्क है. सो नो बडी कैन डू दैट. ओके, नाउ दिस फंक्शन विल नॉट सर्व अवर पर्पज वेन एवर वी वॉन्ट टू डू क्रिप्टोग्राफी. इन क्रिप्टोग्राफी में हम चाहेंगे कि क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में आप इनक्रिप्शन करते हैं देन डिक्रिप्शन करते हैं. सो आज्यूम करिए कि हम y इक्वल टू एफ एक्स कंप्यूट कर रहे हैं, तो x मैसेज है और y सिफर टेक्स्ट है. सो मैसेज से सिफर टेक्स्ट निकालना आसान है, लेकिन रिसीविंग एंड पर आपको सिफर टेक्स्ट से मैसेज वापस रिकवर करना होगा. और जब अगर हम वन वे फंक्शन को क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम है कि एफ इनवर्स कंप्यूट करना डिफिकल्ट है, डिक्रिप्शन एफ इनवर्स के इक्विवेलेंट होगा. तो आपको
अगर y दे दिया हमने, मतलब सिफर टेक्स्ट दे दिया, फंक्शन बता दिया कि f है जैसे इंक्रिप्शन किया था, तो आपको डिक्रिप्शन करने के लिए f इनवर्स कम निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स f इनवर्स y कंप्यूट करना पड़ेगा, है ना, f इनवर्स y। और आपको मालूम है कि f इनवर्स को कंप्यूट करना फंक्शन को डिफिकल्ट है। Okay, so this function cannot be used in cryptography. So we want to have a different kind of function. So that function is trapdoor function. So let me define what is trapdoor function. So trapdoor function uses a kind of secret. Okay. So now the function will be like that: y equal to f k x. सो नाउ इंक्रिप्शन टाइम पर हम एक सीक्रेट इस्तेमाल करेंगे इस फंक्शन के साथ। सो दिस कंप्यूटेशन इज ईजी। सो ट्रैपडोर फंक्शन में क्या है कि अगर आपके पास एफ है, यू नो के एंड यू नो एक्स, देन यू कैन कंप्यूट वाई। दैट मीन्स आपके पास की है, दिस इज की। इसे कई बार हम ट्रैपडोर सीक्रेट भी बोलते हैं, मैथमेटिकल टर्म है ट्रैपडोर सीक्रेट। ठीक है, मतलब एक सीक्रेट गेट है जिसके बारे में और कोई नहीं जानता है, ओनली आप जानते हैं। ठीक है, और रिसीवर जानता होगा। सो ऐप के और आपने एक्स फंक्शन जो मैसेज है वो दे दिया, आपको सिफर टेक्स्ट वाई मिल गया। ठीक है, नाउ ये जो फंक्शन है, नाउ इसमें इनवर्स कंप्यूटेशन दो तरीके की, दो पॉसिबिलिटीज हैं इनवर्स कंप्यूटेशन में, कि यू वांट टू फाइंड आउट एक्स, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप के इनवर्स वाई। हाँ हाँ हाँ, ओके okay, so and now suppose that you want to find out, you are given k, you are given ciphertext y, and you want to recover message. So in trapdoor function case, if you know the k, आपको ये trapdoor secret पता है जिसे हम यहाँ पर की बोल रहे हैं। So if you know k and you know ciphertext, then it is easy to compute x. But if you do not know k, okay, if you do not know k, then you do not have k, then this computation f inverse y equal to x जो है, this computation is difficult, difficult to compute. Okay, so this function is very useful and you can use this function in cryptography, or you can do cryptography using this. So this function fk will be working as your encryption method, fk inverse will be working as your decryption method or decryption function. So fk आपका हो गया encryption algorithm, fk inverse हो गया decryption algorithm. And now जब आपके पास k है, obviously you know k, तो आप इंक्रिप्शन कर सकते हैं, और यू नो के यू कैन डू डिक्रिप्शन। बट इफ यू डू नॉट हैव दिस के, आपको ये के नहीं पता है, देन दिस इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। दैट मीन्स आपको के नहीं पता है तो आप वाई से एक्स रिकवर नहीं कर सकते, दैट मीन्स सिफरटेक्स से मैसेज रिकवर नहीं कर सकते। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नाउन एज ट्रैपडोर वन वे फंक्शन। ठीक है, यहाँ ट्रैपडोर का टर्म का मतलब है सीक्रेट गेट। सो ये फंक्शन वन वे है। अगर आप एक सीक्रेट गेट के बारे में नहीं जानते हैं, तो जो लोग सीक्रेट गेट के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए ये फंक्शन वन वे है। मतलब आप फॉरवर्ड कंप्यूटेशन तो कर सकते हैं लेकिन बैकवर्ड नहीं कर सकते। जैसे मतलब आपके मान लो एक किला है जिसमें आप एंट्री आसान है, लेकिन जब आपको उसके बाहर आना हो तो बाहर तभी आ सकते हैं जब कोई एक सीक्रेट रास्ता आपको पता हो, नहीं तो नहीं आ सकते, काइंड ऑफ थिंग। या एक ये सीक्रेट एक जेल है जिसमें आप एंटर तो कर सकते हैं आसानी से, ओके, बट उससे बाहर आना इम्पॉसिबल है अगर उसमें जो सीक्रेट गेट है उसे आप नहीं जानते हैं, और जो उसको सीक्रेट गेट पता है वो उससे आसानी से बाहर आ सकता है, समथिंग काइंड ऑफ थिंग। सो दैट सीक्रेट इज नाउन ए ट्रैप डोर। सो आपकी की है वो ट्रैप डोर है, ओके। सो आप एंट्री कर सकते हैं लेकिन एग्जिट आप, मतलब आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक आपको ये सीक्रेट ना पता हो। सो इंक्रिप्शन आप कर सकते हैं, के पता है आपको तो, बट डिक्रिप्शन यू कैन नॉट डू अंटिल यू नो द के, ओके। सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में या किसी भी क्रिप्टो सिस्टम में इस टाइप का फंक्शन हमें डिजाइन करना होता है,
ओके, वी जस्ट नीड टू हैव ए ट्रैपडोर फंक्शन. सो वी विल सी दैट जब हम आर एस ए डिस्कस करेंगे देन वी विल सी दैट कि ट्रैपडोर फंक्शन कैसे डेवलप किए जाते हैं. सो आर एस ए में जो फंक्शन बनाएगा दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रैपडोर फंक्शन. सो सबसे पहले आर एस ए से पहले आई वांट टू डिस्कस डिफी-हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिथम. एक्सक्यूज मी. 1 minute. So yesterday we discussed discrete logarithm problem. So before going to discuss Diffie-Hellman algorithm, I will again would like to talk about the discrete logarithm problem. Discrete logarithm problem. So suppose that you have a modulus n is some modulus. ओके नाउ आपको याद होगा ये जो मॉडुलस है तो इसमें जो रेसिड्यू होंगे वो कौन कौन से होंगे. 0 को हम छोड़ देते हैं, 1 2. ये जो मॉडुलस है इसमें जो रेसिड्यूज मिलेंगे आपको, रेसिड्यू का मतलब होता है रिमाइंडर्स अप टू n-1. ये पॉसिबल नंबर्स मिलेंगे आपको, है ना. नाउ अज्यूम करिए कि एक नंबर है, सम नंबर इज a एंड दिस a इज को प्राइम टू n. ओके नाउ जब आप a की डिफरेंट पावर्स रेज करते हैं, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 एंड सो ऑन a टू द पावर m. ठीक है, वेयर m इज द ऑर्डर ऑफ a, m इज द ऑर्डर ऑफ a. और आपको ऑर्डर का मतलब है पता होगा फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग, a टू द पावर m इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n. सो अगर आपका ये जो नंबर a है इस पर आप डिफरेंट पावर रेज करते हैं तो ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स एग्जैक्टली इनके इक्विवेलेंट हैं. दैट मीन्स a की डिफरेंट पावर रेज करके आप इस सेट के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं यूनिकली. यूनिकली से मतलब ये है कि इसमें कोई भी आप 2 पावर चुनेंगे तो वो इक्वल नहीं होंगे. सो दिस m इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ a एंड दिस a इज कॉल्ड प्रिमिटिव रूट ऑफ n. याद होगा आपको, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था प्रिमिटिव रूट ऑफ. सो a इज प्रिमिटिव रूट ऑफ n. Okay, so this was the definition of the primitive root. Now let's define discrete logarithm problem. So suppose that discrete logarithm problem. So suppose that a is some n is some modulus, and I am not writing it in language, I will just saying that a is n is modulus and a is the number that is co-prime to n, or you can say that a is a primitive root of n. ठीक है, suppose that a is a primitive root of n then a to the power, let's say you raise some power x and you get y mod n. Okay, then if you are suppose that if you are given a कॉमा y कॉमा n, ये 3 पैरामीटर्स आपको बता दिए गए and you are told to find x. सो आपको 3 पैरामीटर्स दिए हैं केवल और आपसे कहा जाए x बताइए. सो दिस प्रॉब्लम इज नाउन एज डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम. गिवन a, सो डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम क्या है,
ये सिनारियो में, सो द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू आर गिवन a y n, then in this equation you need to find out this x. So to find out this x is a difficult problem. Okay, and this problem is known as discrete logarithm problem. ठीक है, discrete logarithm problem है, क्या है कि for this equation you are given a, you are given y, you are given n, and you are set to compute x using these three parameters. So computing these parameters इज डिफ़िकल्ट. ठीक है, ये जो कंप्यूट करने की जो प्रॉब्लम है, a बाई एन देने के बाद आपसे x को कंप्यूट करने के लिए कहा जा रहा है. तो ये जो प्रॉब्लम आपको दी गई है, दिस प्रॉब्लम इज नाउन एज डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम, एंड यू शुड रिमेंबर दैट दिस प्रॉब्लम इज डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, और दैट मीन्स x इज डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट गिवन a बाई एन. ठीक है, सो डिफ़िकल्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको सफिशिएंट कंप्यूटेशन दिया तब भी आप कंप्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके लिए कोई भी पॉलिनोमियल एल्गोरिथम नहीं होगी, पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम नहीं होगे. ओके, सो दिस डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम इज हार्ड प्रॉब्लम. ठीक है, तो हम लोग डा में पढ़ेंगे हार्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है. सो हार्ड प्रॉब्लम का मतलब है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितना आपके जो गिवन कंप्यूटिंग है उसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, 200 ऑफ ईयर्स लग सकते हैं. दैट मीन्स जितने भी आपके पास फास्टेस्ट कंप्यूटिंग है सबको यूज करने के बाद भी आपको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 200 ऑफ ईयर्स और मोर देन दीज टाइम अगर लगता है तो हम कहेंगे दिस प्रॉब्लम इज है हार्ड प्रॉब्लम. ठीक है, या समटाइम्स इट मे बी इम्पॉसिबल और यू डू नॉट नो एनी एल्गोरिथम, दैट मे ऑल्सो बी देयर. ठीक है, सो सच प्रॉब्लम्स आर नाउन एज हार्ड प्रॉब्लम. सो डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम इज ए हार्ड प्रॉब्लम. ओके, हाँ, हालांकि उल्टा अगर आपसे कहा जाए कि आपको ए दे दिया जाए, इफ आई give you a comma x comma n, then it is easy to compute y. ठीक है, सो ये तो कंप्यूटेशन आसान है, लेकिन इसका रिवर्स हम उल्टी प्रॉब्लम दे दूं कि आपको x नहीं दूं मैं, a n और y बता दूं, तो आप x कंप्यूट नहीं कर सकते. सो नाउ ओबियसली आपने देखा होगा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हम क्या कहते थे कि हमारे पास दो कीज होती हैं जिसमें से एक को हम पब्लिक बना देते हैं, एक को सीक्रेट रखते हैं. तो आप y और x के साथ ऐसा कर सकते हो. यू कैन मेक y एज ए पब्लिक की, सबको बता दीजिए, और x को आप सीक्रेट की रख लीजिए. ठीक है, सो पब्लिक की से और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एक की को आप जो बता रहे हो उससे हम दूसरी की कंप्यूट नहीं कर सकते. सो दैट मीन्स आप जो ये जो प्रॉब्लम्स के पैरामीटर्स हैं इनको आप क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम डेवलप करने में यूज कर सकते हैं. y आपकी पब्लिक की हो गई, सबको पता है. ठीक है, y एक्चुअली y a एंड n ये आपके पब्लिक की हैं मिला करके तीनों. कई बार रेफर हम y को ही पब्लिक की करते हैं, बट एक्चुअली दीज थ्री पैरामीटर्स आते हैं, क्योंकि y a और n के अकॉर्डिंग पर डिपेंड करेगा ना कि प्रिमिटिव रूट क्या है और मॉडुलस क्या है ना. सो ये जो सेटिंग्स हैं इसमें y आपकी पब्लिक की है, या आपका ये तो तीनों पैरामीटर्स को जोड़ करके बोलते हैं a y n इज द पब्लिक की एंड x इज द सीक्रेट की. ओके, सो चूंकि अभी अब मैंने बताया कि डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू कंप्यूट है, सो आप y अगर किसी को बताते भी हैं तो वो आपकी सीक्रेट की x को नहीं कंप्यूट कर पाएगा. ओके, सो डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम पर आपके बहुत सारे क्रिप्टो सिस्टम्स की सिक्योरिटी बेस्ड है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफी-हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिथम. डिफी-हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिथम. सो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात कर लें, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एल्गोरिथम यूज होती है. सो प्रॉब्लम इज दैट कि देयर इज ए सेंडर, यू कैन से दैट एलिस इज देयर एंड देयर इज ए रिसीवर बॉब. ओके, now there is a channel between them and they want to communicate with each other. ठीक है, एक सेशन में वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दे वांट टू एंटर इनटू अ सेशन. लेकिन सेशन के लिए पहले इन दोनों के पास या कम्युनिकेशन के लिए एक सीक्रेट की रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो टू मेक कम्युनिकेशन सिक्योर दे नीड ए की, सीक्रेट की, दोनों को चाहिए वो की. और ठीक है, सो दैट दे नीड टू शेयर विथ ईच अदर ए की है, जिससे
और वो की दोनों को ही पता हो, इस तरीके से की शेयर की जाए दोनों के बीच में कि ओनली दीज टू पीपल नोज दैट की, एंड देन उस की से बाद में ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर पाए। ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में नेसेसरी है कि दोनों के बीच में एक सीक्रेट की हो। तो जब सीक्रेट की स्टेब्लिश हो जाएगी तो आप किसी भी सिमेट्रिक की एल्गोरिथम से लाइक AES DES यू कैन कम्युनिकेट, है ना, सिक्योरली। So now Diffie-Hellman algorithm allows you to secretly establish this key के, ठीक है, विदाउट नोइंग। आप कम्युनिकेशन करेंगे, दोनों एक दूसरे के बीच में कुछ पैरामीटर्स एक्सचेंज करेंगे, और उन पैरामीटर्स की मदद से यू कैन स्टैब्लिश ए कॉमन सीक्रेट की, एंड बोथ विल हैव दिस की। एंड अटैकर आपके जो पैरामीटर्स को एक्सचेंज करके ऑब्जर्व भी करता है कुछ भी, ही विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट दिस की। सो ओनली दीज टू पीपल विल बी एबल टू नो के, एंड बाकी के लोगों को नहीं पता रहेगा। ओके, सो दिस इज योर डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम। Sorry, this is Diffie-Hellman key exchange algorithm. Okay, so now let's talk about what is the algorithm. So सबसे पहले आपको कुछ पब्लिक पैरामीटर सेट करने होंगे, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्गोरिथम। सो आपको पहले ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स डिसाइड करना होंगे या पब्लिक पैरामीटर्स डिसाइड करने होंगे। हम यहाँ क्यों ग्लोबल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम मान अज्यूम करके चलेंगे कि जो पैरामीटर्स हैं, पब्लिक पैरामीटर्स, वो सबको पता है। So we need to choose these parameters. So suppose we selected a modulus q, ठीक है, q is some modulus, जनरली हम इसे प्राइम नंबर लेते हैं। तो दिस इज ए प्राइम नंबर, ओके। एंड कोई भी प्राइम नंबर नहीं लेंगे, सफिशिएंटली लार्ज प्राइम नंबर लेंगे, ठीक है। सफिशिएंटली लार्ज मतलब एक ऐसा प्राइम नंबर जिसके फैक्टर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, ओके। इस प्राइम नंबर के फैक्टर्स करना इम्पॉसिबल हो, या ये कहिए कि जो मॉडुलस का सेट है, ये जो 1 2 एंड सो ऑन q-1, ये लार्ज सेट हो, मतलब इसमें एक एक करके एलिमेंट्स को अगर यूजर आप देखेंगे अभी आगे, इन सबको ट्राई भी करे तो वो डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। सो दिस सेट भी सफिशिएंटली लार्ज। सो एक आपने एक मॉडुलस q चुन लिया। अब q चुन लिया तो ऑब्वियसली वी विल रिक्वायर ए प्रिमिटिव रूट। सो वी विल अब नाउ q के मल्टीपल प्रिमिटिव रूट्स हो सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली प्रिमिटिव रूट्स होंगे, एंड इट कैन हैव मल्टीपल प्रिमिटिव रूट। सो आपको एक प्रिमिटिव रूट चुनना है। सो लेट्स से a इज ए प्रिमिटिव रूट, इज ए प्रिमिटिव रूट ऑफ q, ठीक है। प्रिमिटिव रूट आप समझ गए अब क्या होता है। नाउ ये तो हो गए ग्लोबल पैरामीटर का सिलेक्शन। सो अज्यूम कर रहे हैं हम दीज पैरामीटर्स आर ग्लोबल, दैट मीन्स अटैकर नोज अबाउट q एंड ऑल्सो नोज व्हाट प्रिमिटिव रूट यू हैव चूजन। नाउ लेट्स सी हाउ कीज विल बी यूजर की विल जनरेट द की। सो एक काम करते हैं, हम ऐसे एक पूरा टाइमलाइन डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये यूजर ए है, या ए फॉर एलिस ले लेते हैं, ओके, और इधर बॉब है। नाउ इन्होंने ग्लोबल पैरामीटर चुन लिए हैं, ए और क्यू दोनों को पता है, ठीक है, और अटैकर को भी पता होगा। सो नाउ दे वांट टू स्टैब्लिश ए की। तो सबसे पहले दोनों लोग अपने अपनी की एक्सचेंज की सेलेक्ट कर लेते हैं। सो व्हाट एलिस विल डू, एलिस विल सेलेक्ट ए सीक्रेट की, दैट मीन्स ए प्राइवेट की। सो रैंडमली सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो एलिस ने क्या किया, रैंडमली सेलेक्ट्स प्राइवेट की एक्स ए, ठीक है। एक्स ए का मतलब, ए का मतलब यहाँ एल एस हो गया, सो अब मार्क चल रहा है। सो ये जो रैंडमली है एक्स ए सेलेक्ट कर लिया, किस सेट से, ये जो मॉडुलस का सेट है ना, यहाँ से कोई एक नंबर रैंडमली उसने चूज कर लिया, और वो नंबर इज एक्स ए, ओके। सो नाउ दिस विल बिकम द प्राइवेट की ऑफ द एलिस। No, this will not be the private key.
this number is xa, and then it can compute a public key. कैसे पब्लिक की कंप्यूट करेंगे? ओके, दिस विल बी सीक्रेट की, यू कैन कॉल इट सीक्रेट की, नो इशू, क्योंकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है ना, तो एक सीक्रेट की भी होगी, एक पब्लिक की भी होगी, दोनों बाद में एक कॉमन की स्टैब्लिश करेंगे, जैसे हम सिमेट्रिक की में इस्तेमाल करेंगे एज ए सेशन की। ना वाई जो है आपकी क्या होगी, पब्लिक की होगी, और वाई कैसे कंप्यूट करेंगे, a टू द पावर xa मॉड q। अब आप देख सकते हैं ये वही इक्वेशन है जिसमें डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे थे। ओके, एक्स से जो है ना एलिस ने क्या किया, ए की पावर एक्स से रेज कर लिया और मॉड ले लिया, सो जो आउटपुट आएगा दैट इज वाई। सो वाई बिकम्स, लेट्स मेक इट वाई ए, सो वाई ए बिकम द पब्लिक की ऑफ एलिस। सो एलिस का जो की पेयर है, जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में एक की पेयर रिक्वायर्ड होता है, सो वाई ए जो है ना पब्लिक की हो गई और एक्स से एलिस की सीक्रेट की हो गई। ठीक है, सो लेट मी राइट पी यू ए यहाँ पर, और ये हो गया पी आर ए, पी आर ए मतलब प्राइवेट की ऑफ एलिस। सिमिलरली बॉब भी क्या करेगा, बॉब भी रैंडमली सेलेक्ट करेगा एक नंबर, रैंडमली सेलेक्ट्स एक्स बी, और एंड एक्स बी विल बिकम द प्राइवेट की एज प्राइवेट की। ओके, ये ध्यान रखना, रैंडमली सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको रैंडमली टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगी। एंड अब एक्स भी आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इससे आप पब्लिक की कंप्यूट कर सकते हैं। तो बॉब पब्लिक की कैसे कंप्यूट करेगा, पब्लिक की कंप्यूट करने के लिए आप ए की पावर एक्स बी रेज कर दीजिए और मॉड क्यू ले लीजिए, एंड यू गेट वाई बी। सो वाई बी बॉब की पब्लिक की हो गई, सो बॉब का भी की पेयर जनरेट हो गया, वाई बी एंड एक्स बी। ओके, ये बॉब की पब्लिक की पी यू बी, ये पी आर बी सीक्रेट की। ओके, लेकिन अभी दोनों के बीच में दोनों ने अपना अपना की पेयर बना लिया, प्राइवेट की पब्लिक की, लेकिन अब दोनों को एक सीक्रेट की स्टैब्लिश करनी है, जिसकी मदद से वो आपस में एक दूसरे के साथ सीक्रेटली सिमेट्रिक के एल्गोरिथम से कम्युनिकेट कर पाए। क्योंकि आपको मालूम है, मैं पिछले डिस्कशन में भी बता चुका हूँ कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में यूज करेंगे तो वो इनएफिशिएंट होती है, सो रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट्स वाई वी डू नॉट यूज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी फॉर मैसेज इंक्रिप्शन। हम केवल की एक्सचेंज, जैसे है यहाँ पर हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को की एक्सचेंज के लिए यूज कर रहे हैं, ओके, और सीक्रेट की स्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। तो आपने की बना ली, अब पब्लिक की प्राइवेट की पेयर की मदद से दोनों पार्टी एक सीक्रेट की स्टैब्लिश करेंगे। सो सीक्रेट की स्टैब्लिश करने का तरीका क्या होगा, सो नाउ व्हाट बॉब विल डू, एलिस और बॉब दोनों अपनी अपनी पब्लिक की शेयर कर देंगे। सो नाउ जब की स्टैब्लिश के बाद, लेट्स से एलिस ने पहले अपनी पब्लिक की भेज दी, तो एलिस ने वाई ए जो है बॉब को भेज दिया। सिमिलरली बॉब ने भी क्या किया, वाई बी अपना एलिस को भेज दिया। ओके, सो अब अज्यूम करते हैं कि बॉब को एलिस की पब्लिक की मिल जाएगी वाई ए। सो व्हाट बॉब विल डू, बॉब क्या करेगा, वाई ए जो है इसके ऊपर अपनी सीक्रेट की पावर रेज कर देगा। सो सीक्रेट की बॉब की क्या है, एक्स बी, और मॉड क्यू ले लेगा, और दिस विल बिकम के डैश फॉर बॉब। ठीक है, ये हो गई बॉब की सेशन की। सिमिलरली एलिस क्या करेगी, वो वाई की जो पब्लिक की आई हुई है, बॉब की जो पब्लिक की आई हुई है, उस पर अपनी सीक्रेट की से पावर रेज कर देगी, दैट मीन्स एक्स से रेज कर देगी और मॉड क्यू ले लेगी, और ये कंप्यूट कर लेगी, और लेट्स से दिस इज के। ओके, सो इस तरीके से बॉब एलिस के पास एक सीक्रेट की मिल गई जो सिमेट्रिक की में इस्तेमाल होगी के, और दिस इज बॉब्स की के डैश। नाउ हम चाहते थे कि ये दोनों की सेम होना चाहिए, तभी तो दोनों इनक्रिप्शन कर पाएंगे, अलग अलग होंगी तो नहीं होगा। सो लेट्स प्रूव दैट कि ये दोनों सेम हैं। तो इसी कंप्यूटेशन को हम थोड़ा फर्दर करते हैं। अब आप देखते हैं कि के की कंप्यूटेशन क्या है। सो लेट्स सॉल्व इट। वाई बी क्या है, वाई बी मतलब क्या है, ए टू द पावर एक्स बी,
वाई बी की जो वैल्यू है, इधर से देखिए आप, वाई बी इक्वल टू क्या, ए टू द पावर एक्स बी मॉड क्यू। तो ए टू द पावर एक्स बी लिखा आपने, और पावर ऊपर है एक्स ए मॉड क्यू, विच इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स ए एक्स बी में लिख सकता हूं मॉड क्यू। मतलब एलिस ने जो के कंप्यूट किया वो ये है। अब यहीं से हम इसमें इसको के डैश में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, दैट मीन्स यू कैन डू इट लाइक दैट, ए टू द पावर एक्स बी की पावर, सॉरी, ए टू द पावर एक्स ए की पावर एक्स बी मॉड क्यू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। और ए टू द पावर एक्स ए क्या है, ए टू द पावर एक्स ए क्या है, ए टू द पावर एक्स ए है वाई ए, है ना, वाई ए टू द पावर एक्स ए वाई ए है, और उसकी पावर एक्स बी लगा हुआ है। और आपको मालूम है कि वाई ए की पावर एक्स बी मॉड क्यू के डैश है। यहाँ से देखिए, ये हमने निकाला हुआ है मॉड क्यू, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस के डैश। इसका मतलब के और के डैश इक्वल है, दिस इंप्लाइज के इक्वल टू के डैश, क्योंकि हमने के की इक्वेशन ली और उससे के डैश डिराइव कर लिया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे इधर यहाँ छोड़ दीजिए और इधर सॉल्व करिए। इधर सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे वाई ए की वैल्यू क्या है, ए टू द पावर एक्स ए, और पावर ऊपर एक्स भी लगा हुआ है मॉड क्यू, सॉरी मॉड क्यू छूटा हुआ था, और ये हो गया ए टू द पावर एक्स ए एक्स बी मॉड क्यू के डैश बराबर। तो आप देख रहे हैं के डैश के इक्वल टू क्या है, ए टू द पावर एक्स ए एक्स बी मॉड क्यू, और के डैश भी बराबर ए टू द पावर एक्स ए एक्स बी मॉड क्यू। इसका मतलब दोनों ने को जो की मिली है, के और के डैश सेम है, सो दैट मीन्स बोथ हैव द सीक्रेट, सेम सीक्रेट की, दोनों पार्टी के पास सेम सीक्रेट की है। ओके, नाउ अटैकर ये कंप्यूटेशन क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि अटैकर को अगर वाई ए मिलता है तो वाई ए से मालूम है उसे वो वाई ए पर पावर रेज करना पड़ता है, बॉब की मानना। सपोज अटैकर ने एक्स से निकाल लिया, एक्स से नेटवर्क से रीड कर लिया, तो अब वो अगर चाहे कि एल एस की सीक्रेट की पता कर ले वाई ए से, तो एक्स से नहीं कंप्यूट कर सकता, है ना। और बॉब की सीक्रेट की इससे नहीं मिलेगी, इससे मिल सकती थी तो एल एस की सीक्रेट की मिल सकती। सिमिलरली अटैकर को अगर वाई बी हाथ लगता है तो उसे एक्स भी कंप्यूट करना पड़ेगा, और आपको मालूम है वाई भी अगर आपके पास है, ए है आपके पास है, और एन आपके पास है, तो आप एक्स भी कंप्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि डीएलपी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है। ओके, सो अटैकर एक्स से एक्स भी नहीं निकाल सकता। तो क्या अगर अब अटैकर के पास वाई ए और वाई बी दोनों हो, और ए भी हो और एन भी हो, ये चार पैरामीटर हैं, तो वो के कंप्यूट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि वाई ए से के निकालना हो या वाई बी से की भी निकालना हो, किसी एक की सीक्रेट की की जरूरत पड़ेगी, चाहे एल एस की सीक्रेट की मिल जाए, चाहे बॉब की सीक्रेट की मिल जाए, जिसमें से दोनों में से उसके कोई भी किसी की भी सीक्रेट की एल इसके पास, जो अटैकर है ईव उसके पास नहीं है। दैट मीन्स अटैकर कैन नॉट कंप्यूट के, ठीक है। सो इस तरीके से जो है डिफी-एलमैन एल्गोरिथम्स की मदद से दो पार्टीज एक सेशन की जनरेट कर सकती हैं। ओके, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन नाउ अभी तक? नहीं, ओके। तो ये आपकी बुक में डिफी-एलमैन दी हुई है एल्गोरिथम, और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल उन्होंने से करके दिखाया हुआ है, तो आप उस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को कर लेना, ठीक है। आई विल नॉट डू दैट। और चैप्टर 10 है, तो आप इसको मेथड को पढ़ लीजिए। नाउ हम इस पर की एक्सचेंज जो प्रोटोकॉल है उसकी बात करने वाले हैं, या एक्चुअली इस पर एक अटैक है, एक्चुअली इस मेथड पर, डिफी-एलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम पर, वो अटैक हमें डिस्कस करना होगा। सो दैट अटैक इज नाउन एज मैन इन मिडिल अटैक। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा केयरफुली, मैन इन मिडिल अटैक। तो अभी तक जो मैं आपसे बोल रहा था कि जो अटैकर है वो की नहीं निकाल सकता है, तो वो की तो नहीं निकाल सकता है, लेकिन एक दूसरे रास्ता अपना करके वो दोनों की रीड कर सकता है, या दोनों के साथ
दोनों को फूल बना करके उनके कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकता है। कैसे करेगा, लेट्स सी। सो सपोज दैट दिस इज एलिस एंड सपोज दैट दिस इज बॉब। ओके, नाउ अगर हम डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज की बात करें तो एलिस ने सपोज एक्स ए की चुन लिया, पब्लिक पैरामीटर्स मान लेते हैं हम, वही मॉडुलस आपका क्यू है और प्रिमिटिव रूट ए है। ओके, सो एलिस ने क्या किया होगा, रैंडमली, मैं पूरी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, एलिस ने रैंडमली एक एक्स ए चूज किया जो आप एलिस की सीक्रेट की हो गई, मतलब प्राइवेट की हो गया, एंड देन उसने पब्लिक की कंप्यूट कर ली। कैसे, वाई ए इक्वल टू ए टू द पावर एक्स ए मॉड क्यू। ये एलिस की पब्लिक की यूज हो गई। सिमिलरली बॉब भी अपनी एक पब्लिक की सेलेक्ट करता है। सो बॉब सबसे पहले एक सीक्रेट की चूज करता है रैंडमली, ओके, एंड देन उसको ए की पावर रेज करके वाई वी कंप्यूट कर लेता है। तो ये बॉब की पब्लिक की है, ये सीक्रेट की है, ये एलिस की पब्लिक की है, ये एलिस की सीक्रेट की है। नाउ सपोज दैट इनके बीच में एक अटैकर है ईव, जो चैनल को रीड कर रहा है। ठीक है, सो लेट मी प्रोड्यूस जस्ट ए पार्टीशन सो दैट थोड़ा सा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पार्टीशन का मतलब है कि सारा कम्युनिकेशन ईव कैच कर रहा है और फिर वो उसको मैनिपुलेट कर रहा है। नाउ आपको मालूम है कि एलिस और बॉब को सीक्रेट की स्टैब्लिश करनी है दोनों के बीच में, तो अपनी अपनी पब्लिक की दोनों को शेयर करना पड़ेगी। तो सबसे पहले एलिस ने मान लीजिए अपनी पब्लिक की भेजी, जिसे जो पब्लिक की क्या है, वाई है। नाउ ईव ने क्या किया, क्योंकि ईव को चैनल का एक्सेस अवेलेबल है, ईव ने क्या किया कि ये जो पब्लिक की है उसे आगे नहीं जाने दिया, इसने ये पब्लिक की को यहीं कॉपी कर लिया और नेटवर्क से हटा दिया। ठीक है, और दूसरा कुछ मैसेज बॉब को भेजा। सो लेट से वो बॉब को क्या भेजता है, इसने क्या किया, एलिस ईव ने एक बॉब के साथ अपनी एक सीक्रेट, एलिस इसने भी एक सीक्रेट की चूज की, और लेट से वो है एक्स बी ई, मतलब ईव की सीक्रेट की फॉर बॉब, और इसने क्या किया, इसको ए के ऊपर पावर रेज कर दिया मॉड क्यू में, और एक नंबर आया जो पब्लिक की होगी, वो होगी लेट से वाई बी ई। ठीक है, इसने वाई ए को हटा दिया यहां से, और अब भेज क्या दिया बॉब को, वाई बी ई। इसने दूसरी पब्लिक की एक्चुअली चुनी, अपनी पब्लिक की एक बनाई बॉब के लिए, और वो बॉब को भेज दी। ठीक है, ना बॉब ने बॉब अज्यूम कर रहा है कि ये चैनल से जो कम्युनिकेशन आया है वो एलिस से आया है ना। तो बॉब ने क्या किया, ये वाई बी ई ले लिया, और बॉब इसको समझ रहा है कि ये जो पब्लिक की है ये एलिस की पब्लिक की है। ठीक है, तो बॉब क्या करेगा, एक कॉमन सीक्रेट की इस्तेमाल करेगा के। तो वो के कैसे इस्तेमाल करता है, इसी पर अपनी पावर रेज कर देगा अपनी प्राइवेट की से। तो बॉब की प्राइवेट की क्या है, एक्स बी मॉड क्यू ले लिया, और लेट से ये आ गया के ई बी, नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, के ई बी, और इसकी वैल्यू क्या है, के ई बी की डिटेल में अगर हम देखें तो ए टू द पावर एक्स बी और एक्स बी ई मॉड क्यू। ठीक है, ये तो बॉब समझ रहा है ये सीक्रेट की मैंने जो स्टैब्लिश किया ये एलिस के साथ किया है ना, जबकि इसने जो सीक्रेट किया ये किसके साथ स्टैब्लिश कर लिया, ईव के साथ। नाउ बॉब क्या करेगा, जब उसे मालूम चला कि मुझे एलिस की पब्लिक की मिल गई, तो वो अपनी भी पब्लिक की भेजेगा एलिस को, और बॉब की पब्लिक की क्या है, वाई बी। ठीक, नाउ अब ईव को बॉब की पब्लिक की मिल गई है वाई बी, तो ईव क्या करेगा, ये के ई बी कंप्यूट करने के लिए क्या करेगा, सिंपली वाई बी की पावर रेज कर देगा, वाई बी पावर अपनी ये सीक्रेट की जो इसने बॉब के साथ स्टेब्लिश की है, एक एक्स बी ई मॉड क्यू, और वाई बी क्या है, ए टू द पावर एक्स बी है ना, और उसके पावर एक्स बी ई मॉड क्यू। तो ये की क्या है, कौन सी, ये देखेंगे ये सेम की जनरेट होगी। सो मैं इसको यही नाम दे देता हूं, के ई बी।
तो अब ईव ने क्या कर लिया, बॉब के साथ एक सीक्रेट की स्टैब्लिश कर ली, और बॉब समझ रहा है कि ये सीक्रेट की के ई बी जो है ना मैंने एलिस के साथ स्टैब्लिश किया है, लेकिन गलती से ये हो गया है कि ईव के साथ स्टैब्लिश हो गया है। सिमिलरली अब जब बॉब का सीक्रेट की बॉब की पब्लिक की आएगी, तो एलिस जो ईव है ये क्या करेगा, ये पब्लिक की बॉब की जो है ना एलिस के पास नहीं पहुंचने देगा, वो वाई बी को यहां से हटा देगा, और एलिस के लिए भी उसने एक पब्लिक की बनाई। ठीक है, सो एलिस के लिए उसने एक सीक्रेट की चुनी एलिस के बिहाफ पर, लेट्स से वो दैट की इज एक्स ए ई। ओके, और इससे इसने पब्लिक की निकाल ली वाई ए ई, ए की पावर रेज करके मॉड क्यू लेकर के, और ये पब्लिक की उसने एलिस को भेज दी। क्या भेजा है, वाई ए ई, और ये जो जा रहा था ना वाई बी, इसको यहीं पर ड्रॉप कर दिया, हटा दिया चैनल से, और क्या भेज दिया, वाई ए ई, एलिस को मिल गया। अब एलिस को वाई ए ई मिलेगा, एलिस क्या समझ रही है, ये वाई ए ई जो ना बॉब से आई है, तो इसने क्या किया, वाई ए ई पर अपनी जो ना की एक्स से रेज कर दी पावर के फॉर्म में, और मॉड क्यू कंप्यूट किया और इसे सॉल्व कर लिया। तो वाई ए ई क्या है, वाई ए ई ये एक्स की पावर ए की पावर एक्स ए ई, ए की पावर एक्स ए ई। ठीक है, ये सफिक्स में ई, सॉरी इसको भी कम कर, एक्स ए ई और एक्स की पावर एलिस की ए मॉड क्यू, एंड लेट्स कॉल इट, ये जो की है इसका नाम रख देते हैं हम वाई ए ई। ओके, सो एलिस ने एक की, सॉरी एक मिनट, वाई नहीं होगा, ये होगा के ए ई, के नाम देते हैं इसको, के ए ई। सो एलिस ने एक सीक्रेट की स्टैब्लिश किया के ए ई, और एलिस समझ रही है ये जो की बनी है ये बॉब के साथ है, लेकिन हुआ क्या है, ये जो की है वो बॉब के साथ नहीं ईव के साथ स्टैब्लिश हुई है। क्यों, क्योंकि ईव भी इस की को कैलकुलेट कर लेगा। कैसे, नाउ जो एलिस की है वाई ए ईव के पास है, तो वो क्या करेगा, वाई ए पर ये वाला जो एक्स ए ई है ये पावर रेज कर देगा, एक्स ए ई है ना मॉड क्यू, और ये मालूम है आपको वाई ए क्या है, ए टू द पावर 1 मिनट। तो अब ईव क्या कंप्यूट कर रहा है, वाई ए की पावर एक्स ए ई रेज कर दिया। एक्स ए ई क्या है, सीक्रेट की ईव की है विद रिस्पेक्ट टू एलिस, और ये हो गया ए की पावर एक्स ए, एलिस की सीक्रेट की, एंड ये इससे आया है फॉर्मूले से, और एक्स ए ई मॉड क्यू, और ये वैल्यू क्या है आपने अभी देखा, ये हमने कंप्यूट किया हुआ है यहाँ, दैट मीन्स के ए ई। ओके, सो इस तरीके से ईव ने क्या कर लिया, एक तो के ई एलिस के साथ स्टैब्लिश कर ली की, और एक की बॉब के साथ स्टैब्लिश कर ली, है ना, दो सीक्रेट की ईव के पास हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू एलिस जो है आपकी के ए ई। तो ये ईव ने क्या किया, ये की एलिस के साथ स्टैब्लिश किया, और एलिस क्या समझ रही है कि ये की एक्चुअली मैंने बॉब के साथ स्टैब्लिश किया है। सिमिलरली बॉब भी, ईव ने बॉब के साथ एक सीक्रेट की स्टैब्लिश कर लिया, और बॉब समझ रहा है कि ये सीक्रेट की मैंने ईव के साथ स्टैब्लिश किया, एलिस के साथ स्टैब्लिश किया, जबकि ये उसका उल्टा है। ठीक है, सो बॉब ईव इज एबल टू फूल बोथ ऑफ देम, है ना। सो नाउ अब एलिस जब भी कोई मैसेज इनक्रिप्ट करेगी तो वो क्या यूज करेगी, के ए ई, है ना, इस की से मैसेज इनक्रिप्ट करेगी और सेंड करेगी, चाहे वो एईएस इस्तेमाल कर रही हो या डीईएस इस्तेमाल कर रही हो। ओके, सो अब जब भी कोई मैसेज के ए ई से इनक्रिप्ट होकर के आएगा चैनल पर, तो इस साइड से तो ईव को पता है कि ये मैसेज जो ना एलिस इनक्रिप्ट करके सेंड कर रही है, और ये वाली की बॉब के पास, ईव के पास है, और ईव क्या करेगी, इस की के मदद से मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगी, और फिर डिक्रिप्ट करने के बाद चाहे तो इस मैसेज को वो ड्रॉप भी कर सकता है, या फिर ईव को कोई दूसरा मैसेज भेजेगा और बॉब को भेज देगा, इसके बदले में जो मैसेज था उसे चेंज करके कोई दूसरा मैसेज भेजेगा, और वो उसके लिए बॉब के साथ जो इनक्रिप्शन की शेयर की है के ई बी, इससे इनक्रिप्ट करेगा, और जब वो मैसेज मिलेगा तो बॉब उसे सक्सेसफुली डिक्रिप्ट कर लेगा, क्योंकि बॉब के पास भी के ई बी है, लेकिन ये की बॉब समझ रहा है एलिस के साथ स्टैब्लिश हुई है, बट इट इज स्टैब्लिश्ड विद ईव है। सो
देन बॉब जब कुछ भी सेंड करेगा तो ये की से इनक्रिप्शन करेगा और ये की भी ईव के पास है। तो ईव के पास दोनों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक एक सीक्रेट की है। ठीक है, के ए ई फॉर एलिस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, के ई बी बॉब के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस तरीके से बॉब जो है दोनों के कम्युनिकेशन को आसानी से इंटरसेप्ट करके रीड कर सकता है और उनके साथ मैसेज कम्युनिकेशन सीक्रेटली कर सकता है। ओके, सो दिस अटैक इज नाउन एज मैन इन मिडिल अटैक। मैन इन मिडिल अटैक नाम क्यों रखा गया आप समझ गए होंगे। ये जो पर्सन है दोनों के बीच में बैठा हुआ है, दैट दोनों के बीच में मतलब दोनों के चैनल्स को एक्सेस करके इट इज सिटिंग इन मिडिल एंड देन इट इज एबल टू ब्रेक द कम्युनिकेशन। दोनों के कम्युनिकेशन को वो आसानी से पढ़ सकता है, उनकी सीक्रेसी को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, सो दिस अटैक इज डेंजरस। नाउ आप मुझे इसमें से आप मुझे बता सकते हैं कि इस अटैक को हम कैसे डील कर सकते हैं या ये अटैक क्यों हुआ। नाउ ध्यान रखना है आपको, इसमें डिफी एलमैन की एक्सचेंज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीकनेस डिफी एलमैन एल्गोरिथम की नहीं है। कैन यू टेल मी कि ये इशू क्यों आया, ऐसा क्यों हो गया कि ईव ने एलिस और बॉब दोनों के साथ की स्टैब्लिश कर ली, दोनों को फूल बना लिया। कोई बताएगा। नो। हाँ, गुड, ग्रेट, वेरी गुड। सो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई देखो, ये मेन प्रॉब्लम क्या हुई जब आप एलिस ने अपनी सीक्रेट पब्लिक की शेयर जो रिसीव की बॉब की, तो एलिस क्या मान के चल रही है कि ये बॉब्स के मैसेज आया हुआ है। लेकिन यहाँ एक्चुअली ऑथेंटिकेशन नहीं किया एलिस ने कि ये एक्चुअली मैसेज बॉब से ही आया है। ये एलिस को श्योरिटी करना चाहिए। एलिस शुड इंश्योर और इट शुड बी इंश्योर्ड कि बॉब की पब्लिक की जो एलिस को मिली है, एलिस समझ रही है कि मुझे बॉब की पब्लिक की मिली है, वो एक्चुअली बॉब की ही है। ये तो श्योर हुआ ही नहीं, है ना। सिमिलरली जब एलिस ने अपनी पब्लिक की बॉब को भेजी तो जो पब्लिक की बॉब को मिली, बॉब के पास ये कोई मैकेनिज्म नहीं है चेक करने का कि ये पब्लिक की एलिस की ही है। ओके, सो इसी लेक ऑफ ऑथेंटिकेशन के जो मैसेज है, मैसेज ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ एक्चुअली। यहाँ पर जो पब्लिक की मिल रही थी वो मैसेज के फॉर्म में मिल रही थी, तो जो पब्लिक की मिल रही थी हमने वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, और ये वेरीफाई नहीं करने की वजह से ईव दोनों को आसानी से बेवकूफ बना पाया, है ना। सो ये जो प्रॉब्लम है ये है कि की एक्सचेंज करते समय आपको मैसेज ऑथेंटिकेशन करना होगा। अगर आप मैसेज ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो वो सोर्स को कोई फोर्ज कर सकता है। तो ओबियसली जब आप की भेज रहे हैं तो एक तो तरीका ये था कि आप सेफली की भेजें, क्योंकि यहाँ हम जो की भेज रहे हैं वो सेफली नहीं भेज रहे हैं। तो इसके लिए बेटर वे है कि आप एक पब्लिक डायरेक्टरी लीजिए जो कि ट्रस्टेड हो, और यहाँ एलिस और बॉब अपनी अपनी सिक्स जो प्राइवेट की हैं वाई ए और वाई बी शेयर कर देंगे, पहले से रख देंगे, पोस्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये ट्रस्टेड पार्टी है जो सॉरी ये एक सर्वर है जो ट्रस्टेड है, या ये कहिए ये सर्वर को एक ट्रस्टेड अथॉरिटी जो है ना मेंटेन कर रही है, या ये जो मैसेज है ये सर्टिफिकेट हो, पब्लिक की सर्टिफिकेट अगर कई बार हम बोलते हैं इसमें। सो एक्चुअली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक की सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पब्लिक की सर्टिफिकेट एक तरीके का सर्टिफिकेट है जो सर्टिफाई करता है कि वाई ए इज द पब्लिक की ऑफ एलिस, एंड एक सर्टिफिकेट होगा कि एक्स भी बॉब की पब्लिक की है। एक सर्टिफिकेट, जैसे आप अपनी आईडी कैसे प्रूव करते हैं यूनिवर्सिटी में जाकर के, यूनिवर्सिटी ने एक आपको आई कार्ड दिया हुआ है, उसके बेस पर आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, है ना। अगर यूनिवर्सिटी अपनी आईडी नहीं देगी और आपसे कहे आप कोई भी आईडी लेके आ जाइए, तो आप अपनी कोई भी आईडी बना लेंगे, या गवर्नमेंट की आईडी होती है ट्रस्टेड वाली आईडी। आपने देखा ना कई बार जब भी आपसे आईडी मांगी जाती है तो आपसे आधार मांगा जाता है या कोई आईडी मांगी जाती है जो फोर्जेज नहीं होती है ना, अनफोर्जेबल आईडीज मांगी जाती हैं। तो अगर आप अपनी आईडी को ही फोर्ज कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे सपोज दैट आप एक पर्सन से मिलते हैं और वो आपको ईमेल देता है अपना, तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये उसी का ईमेल है ना। हालांकि आप उस पर ट्रस्ट करते हो कि ये जो ईमेल दे रहा है वो अपना ही ईमेल दे रहा है, लेकिन वो अगर मान लीजिए किसी और का ईमेल दे दे तो आप कैसे इंश्योर होंगे कि ये किसी और का या उसका ईमेल नहीं है।
सो जनरली जैसे आप अपनी आईडी प्रूव करने के लिए कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हो, अपने आप को आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हो, है ना। सो सिमिलरली यहाँ भी आपको जो मैसेज शेयर कर रहे हो उस समय मैसेज के साथ एक सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। मैसेज का मतलब यहाँ एक्चुअली आपकी जो पब्लिक की है वो आपकी आइडेंटिटी के तौर पर काम कर रही है कि ये एलिस की पब्लिक की है, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि हाँ ये कोई पार्टी का सर्टिफिकेट हो जिसे कोई फोर्ज ना कर पाए, और ये सर्टिफिकेट कहे कि हाँ ये वाली जो की है ये एलिस की है। सो अगर आप पब्लिक की, इसी को बोलते हैं पब्लिक की सर्टिफिकेट। तो जितने भी पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स हैं वो पब्लिक की सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। सो पब्लिक की सर्टिफिकेशन के लिए एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है X.509। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टडी दैट प्रोटोकॉल, आपके बुक में भी है। वी विल नॉट कवर दैट प्रोटोकॉल, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन X.509 एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू पब्लिक की सर्टिफिकेशन होता है। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे इंडिया में भी पब्लिक की सर्टिफिकेट कैसे इशू होते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि सिक्योर बिजनेस साइट बनानी है जिसमें आप बाकी लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं सिक्योरली। तो आपको एक सर्वर बनाना है और सर्वर आपके कई सारे कस्टमर्स को कोई सर्विस देता है। तो फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए बैंक स्टार्ट किया एक, और बैंक का आपका सर्वर है जिसके थ्रू आप कस्टमर्स को ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो सर्वर है, सर्वर से कोई भी पार्टी कम्युनिकेट करना चाहती है तो आपको उनके बीच में की एक्सचेंज करना पड़ेगा। सो एक कोई क्लाइंट है जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करना चाहता है ना। तो आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके लिए आपको सीक्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीक्रेट की के लिए क्या करेंगे, आप पब्लिक की दे देंगे। तो एक आपकी पब्लिक की होगी, एक आपके क्लाइंट की पब्लिक की होगी। जनरली क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन पब्लिक की से करने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट का हम ऑथेंटिकेशन ऐसे ही कर लेते हैं उसके क्रेडेंशियल्स के बेस पर, यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन क्लाइंट सर्वर को कैसे वेरीफाई करे कि आप, जैसे मान लीजिए आपकी बैंक की सर्विस एक्सेस कर रहे हैं, तो आप कैसे इंश्योर होते हैं कि ये, जैसे मान लीजिए आपने एसबीआई की ऑनलाइन बैंकिंग साइट खोली, तो आप कैसे इंश्योर होते हैं कि ये जो बैंकिंग साइट है एसबीआई की ही है। क्योंकि एसबीआई की वेबसाइट जो लिखी दिख रही है वो वैसा तो कोई भी कर सकता है, ओके। तो आपका जो ब्राउजर है, वो कैसे वेरीफाई करता है, वो ब्राउजर क्या करता है कि वो वेबसाइट से सर्टिफिकेट मांगता है। तो आपकी वेबसाइट के पास जो एसबीआई की वेबसाइट है, वो जब आप एचटीटीपी से कम्युनिकेट करते हैं तो वो शुरू में जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है, चैनल इस्टेब्लिश होता है दोनों के बीच में, पैरामीटर्स एक्सचेंज होते हैं, तो उस समय वो एक सर्टिफिकेट शेयर करती है आपकी साइट, जो एसबीआई हो गई या जो भी वेबसाइट है जो सिक्योर कम्युनिकेशन कर रही हैं, वो एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करती हैं, और वो सर्टिफिकेट किसी थर्ड पार्टी द्वारा इशू किया जाता है। तो इंडिया में भी जो ना कई सारी एजेंसीज हैं जो सर्टिफिकेट देती हैं, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो उसमें सर्टिफिकेट में आपको बहुत सारी डिटेल सबमिट करना पड़ती हैं, और वो फिर एक डिजिटल सर्टिफिकेट आपका इशू करते हैं आपको। कोई किसी ने आप चाहें तो किसी भी जो ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करिए हाउ टू सी ए सर्टिफिकेट ऑफ ए सिक्योर साइट, आसानी से मिल जाएगा। आप पहले तो जो ना, आप जो ग्रीन बॉक्स आता था ग्रीन कलर का ब्राउजर में ऊपर, वहाँ पर क्लिक करने से सर्टिफिकेट दिख जाता था। अब शायद कोई Ctrl+R या कुछ Ctrl+S करने पर साइड में सेटिंग्स खुलती हैं, वहाँ आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट। तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करती हैं बैंक्स या कोई भी सिक्योर साइट है। वो सर्टिफिकेट जो है ना साइंड होता है किसी थर्ड पार्टी से, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी से, ओके। तो वो पार्टी, जैसे आपको मार्कशीट मिलती है, तो मार्कशीट एक यूनिवर्सिटी इशू कर रही है ना, वहाँ पर कई सारे साइंस होते हैं, तो आप वो मार्कशीट को कहीं भी दिखा करके अपने प्रूव करते हो कहाँ हमने एमएससी कंप्लीट किया है, हमारे पास एमएससी की डिग्री है। तो ऐसे ही एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो इसके लिए कुछ एजेंसीज हैं जिससे हम बोलते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, सीए। तो इंडिया में कई सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं। तो आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, cca.gov.in। ये एक वेबसाइट है, cca.gov है शायद, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो एक लेट मी क्लोज दिस कम्युनिकेशन, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन